નમસ્કાર, હું છું આપની સાથે કિશન તિવારી. આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતનો ખાસ કાર્યક્રમ આપણો દેશ. સમાચારોની શરૂઆત કરી આપણે રાજસ્થાનના જયપુરથી. તો દેશભરમાં ગણેશ ઉત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે અને ત્યારે સીએમ ભજનલાલ શર્મા જયપુરમાં બાપાના મંદિરે પહોંચ્યા હતા. મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્માએ તેમની પત્ની સાથે મોતી ડુંગરી ગણેશ મંદિરમાં પહોંચ્યા હતા. ત્યાં મહંત કૈલાશ શર્માએ પૂજા અર્ચના કરી અને સાથે જણાવી દઈએ કે ભજનલાલ શર્માએ સમગ્ર દેશ અને રાજ્યની સુખ અને સમૃદ્ધિ માટે ભગવાન શ્રી ગણેશને પ્રાર્થના કરી અને કહ્યું કે ભગવાન શ્રી ગણેશજીના આશીર્વાદ તમારા પર રહે. અને બીજી તરફ આપણે વાત કરીએ તો સવાઈ માધોપુરના રણથંભોર કિલ્લા ખાતે ગણેશ જન્મોત્સવ પર ત્રિનેશ ગણેશનો 3 દિવસીય લક્ષ્મી મેળો યોજવામાં આવ્યો છે અને જ્યાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તોએ ત્રિનેત્ર ગણેશના દરબારમાં હાજરી આપી હતી અને તેમની સુખાકારી માટે પ્રાર્થના કરી હતી. ત્યારે જણાવી દઈએ કે ભારે વરસાદ પછી લાખો ભક્તો ભગવાન ગણેશના દર્શન કરવા માટે રણથંભોર પહોંચ્યા હતા. ગણેશ મેળામાં પહોંચેલા ભક્તોની સુરક્ષા માટે પોલીસ અને વહીવટી તંત્ર હાઈ એલર્ટ પર હતું. સાથે સાથે જણાવી દઈએ કે આ અંગે સંવાદદાતાનું આ એક જુઓ ખાસ અહેવાલ. लकी मेला गणेश चतुर्थी का पर्व होने के चलते अपने पूरे परवान पर है। अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ त्रिनेत्र गणेश मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे हैं। जिले में हुई अतिवृष्टि के बावजूद श्रद्धा का सैलाब कम नहीं पड़ रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ 3 दिन से दर्शन करने को पहुंच रहे हैं। अभी हम त्रिनेत्र गणेश मंदिर के दरबार में हैं। यहाँ मंदिर महंत द्वारा मंदिर के पंडितों द्वारा भगवान त्रिनेत्र गणेश का अलौकिक श्रृंगार किया गया है। इसके चलते यहाँ पर लोगों में भारी श्रद्धा भी यहाँ त्रिनेत्र गणेश मंदिर को देखी जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि विश्व भर में त्रिनेत्र गणेश ही एक ऐसे भगवान है जहाँ जिनके 3 नेत्र हैं। वह अपने यहाँ पूरे परिवार के साथ रिद्धि सिद्धि सहित निभाते हैं। यहाँ पर देश विदेश सहित पूरे प्रदेश से अपने श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने को पहुँचे हैं। इंडिया न्यूज़ बहुत कुछ मान्यता है यहाँ पे, लोग इसको बहुत मानते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ काफ़ी भीड़ होती है और रेगुलर हर 8 दिन बुधवार को यहाँ पे लोग आते रहते हैं। आप हमेशा आते हो? हाँ, मैं आती रहती हूँ, महीने में 1-2 बार तो आ ही जाती हूँ। मनोकामना पूरी होती है? हाँ, मन में अगर विश्वास है, अगर विश्वास रखेंगे हम भगवान के ऊपर तो मनोकामना जरूर पूरी होगी। जी, देखा जाए इतनी आपदा के बाद भी भक्तों का जो सैलाब है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा और करीब करीब आप ये माने 2 लाख से ज़्यादा भक्तों की यहाँ आने की पूरी शाम तक की उम्मीद है और भक्तों का जो जोश है वो देखने लायक है। गणेश चतुर्थी पर मंदिर में विशेष रूप से क्या आयोजन रहा है? जी, इस बार जो गणेश जन्मोत्सव है उस पर गणेश जी को स्वर्ण का रत्न जड़ित સમાચારોમાં હવે આગળ આપણે વાત કરીએ તો સમગ્ર રાજ્યમાં ગણેશ ચતુર્થી ઉજવવામાં આવી રહી છે અને ત્યારે જણાવી દઈએ કે રાજગઢ, વિરાટનગર, લુણી અને ખેવસરમાં પણ ભક્તોએ ગણેશ ચતુર્થી પર ભગવાન ગણેશની પૂજા કરી હતી. આ 4 અલગ અલગ તસવીરો અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ. આપ જોઈ શકો છો તમારા ટેલિવિઝન સ્ક્રીન પર, જ્યાં ભક્તોએ ભગવાન ગણેશની પ્રાર્થના કરી હતી અને સુખ સમૃદ્ધિ અને સુખાકારીની કામના કરી હતી. તો આ 4 તસવીરો આપ જોઈ રહ્યા છો રાજગઢ, વિરાટનગર, લુણી અને ખેવસરથી. આ જ્યાં અત્યારે હાલ ગણેશ ઉત્સવ ચાલી રહ્યો છે, સમગ્ર દેશભરમાં ગણેશ ઉત્સવનો અત્યારે દોર છે. ત્યાં ઠેર ઠેર ગણપતિની મૂર્તિ સ્થાપના કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે આ જે 4 અલગ અલગ જગ્યાને રાજસ્થાનથી લઈને ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર તમામ જગ્યા અત્યારે હાલ ગણપતિ ઉત્સવ ચાલી રહ્યો છે. તો જણાવી દઈએ કે આ ખેવસરમાં પણ ગણેશ ચતુર્થી પર ભારે ભીડ જોવા મળી હતી, જે શ્રદ્ધાળુઓ છે તે ભાવપૂર્ણ અત્યારે દર્શન માટે પહોંચી રહ્યા છે. સમાચારોમાં આગળ હવે આપણે વાત કરીએ ઉત્તર પ્રદેશના સોનભદ્રની. તો સોનભદ્ર જિલ્લામાં શિક્ષણ વિભાગના મૂળભૂત શિક્ષણ અધિકારી સામે ભારે હોબાળો મળ્યો છે. ત્યારે જણાવી દઈએ કે આ મામલો જે છે તે એટલો વધી ગયો કે મહિલા શિક્ષકોની સાથે પુરુષ શિક્ષકો પણ રસ્તા ઉપર ઉતરી આવ્યા હતા. ખરેખર આ શું છે સમગ્ર મામલો, તે વિશે આપણે વાત કરીએ તો કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારી દ્વારા મહિલા શિક્ષક સાથે કરવામાં આવેલી અભદ્ર વર્તન અને ત્યારબાદ બીએસએ દ્વારા કરવામાં આવેલી કથિત ઉગ્ર વર્તનથી શિક્ષકોની જે રોષ છે તે ભભૂકી ઉઠ્યો છે. એવો આરોપ છે કે સીસીએલ સંબંધિત માંગણી પર પહેલાથી જ રોષે ભરાયેલા બીએસએ મહિલા શિક્ષક સાથે અભદ્ર વર્તન કર્યું અને તેણીને ઓફિસમાંથી બહાર કાઢી મૂકી હતી. અને તે દરમિયાન સમગ્ર મામલાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો અને મામલો ગરમાઈ ગયો.
पदाधिकारी, जिला महामंत्री और हमारी मांग है बीएसए कार्यालय में कार्यरत, एसएसए कार्यालय में कार्यरत डीसी अरविंद पाठक के संबंध में। डीसी अरविंद पाठक से हुई बातचीत के दौरान उन्होंने हमसे अभद्रता से बात की। वो काफी शिक्षकों के साथ अभद्रता से बात कर चुके हैं, जिसकी शिकायत हमें मिल चुकी है। हम इन्हीं सब बातों को लेकर के उनसे बात करने गए थे, उन्होंने भी हमारे साथ अभद्रता से व्यवहार किया। इस समय हम सोनभद्र के बेसिक शिक्षा कार्यालय पर हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर शिक्षक काफी आक्रोशित हैं। शिक्षकों के द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल महिला शिक्षक एसएसए कार्यालय में जब पहुंची तो वहां पर तैनात कर्मचारी के द्वारा उनसे अभद्रता किए जाने के बाद महिला शिक्षकों के द्वारा इस पूरे मामले में जब शिकायत की गई बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ, तो उन्होंने इस मामले में कोई कार्रवाई न कर महिला शिक्षकों को ही फटकार लगाई, जिसको देखते हुए शिक्षक आक्रोशित हुए और इस बेसिक शिक्षा कार्यालय पर शिक्षक एकत्रित हुए हैं और आज पुनः बेसिक शिक्षा से इस मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की, जिसको देखते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से उठे और वापस चले गए। जिसके बाद आक्रोशित शिक्षकों का कहना है कि अब अगले दिन वो जिलाधिकारी के यहाँ इस मामले को रखेंगे और इस मामले में जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक शिक्षक अपने इस प्रयास को लगातार जारी रखेंगे। अंशुमान पांडे, इंडिया न्यूज, सोनभद्र। તો બીજી તરફ હવે આગળ આપણે વાત કરીએ ઉત્તર પ્રદેશના દેવરિયાની, તો દેવરિયામાં શહીદ હજરત સૈયદ અબ્દુલ ગની મજારનો વિવાદ વધુ ઘેરો બની રહ્યો છે। દેવરિયા સદર ધારાસભ્ય શલભમણી ત્રિપાઠીએ મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથને પત્ર લખીને મજારની જમીન પર વાંધો ઉઠાવ્યો છે। જણાવી દઈએ કે ધારાસભ્યનો આરોપ છે કે મજાર સરકારી જમીન અને પીડબ્લ્યુડી જમીન પર બનેલી છે। મજાર ગેરકાયદેસર રીતે બનાવવામાં આવી છે અને તેનો વ્યાપ સતત વધી રહ્યો છે। ત્યારે ધારાસભ્યની ફરિયાદ પર દેવરિયા મહેસૂલ વિભાગે જમીનની ફાઇલોની તપાસ શરૂ કરી છે। देखिए, देवरिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ओवरब्रिज है, उसका दोहरीकरण हो रहा है। वहाँ अक्सर जाम लगता है, आबादी बढ़ चुकी है। हम लोगों ने उस दिशा में प्रयास शुरू किया कि ओवरब्रिज का दोहरीकरण हो जाए। डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया कि ओवरब्रिज के ठीक बगल में मज़ार बनी हुई है और हमारे पास जगह नहीं है कि हम उसका दोहरीकरण कर पाएँ। हम लोगों ने मज़ार के बारे में पता करना शुरू किया तो ये पता चला कि 1993 में जब माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार गिरी और समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उसी दौरान सरकारी भूमि को, यानी उसमें पीडब्ल्यूडी की भी ज़मीन है, उसमें बंजर ज़मीन भी है, गवर्नमेंट लैंड है, उसको रातों रात कब्रिस्तान और मज़ार के तौर पर तब्दील कर दिया गया। हमारे बुजुर्गों ने जब यहाँ खिदमत किया था तो पहले से यहाँ मज़ार थी और जहाँ तक बंजर भूमि की बात है, ये नॉन जेके की जमीन गवर्नमेंट ने अलॉट की है कब्रिस्तान और मज़ार के लिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सर 1857 से जो है ये मज़ार यहाँ पे है और इसकी बाकायदे जो है सरकार ने इस जमीन को हमारे ये कब्रिस्तान और मज़ार के नाम से आवंटित किया है, जिसके कागजात ये आपके सामने हमारे पास है। ये सन 1993 में ये जो है इसको जो है हमारे मज़ार और उसके नाम से किया गया। उनका डेट तो नहीं मुझे याद है, लेकिन मज़ार हम जब छोटे थे 12 वर्ष तक, तब से मैं मज़ार देखता हूँ। और पुल, छोटा पुल था, ये नीचे से जाने का रास्ता था। हम लोग जो है पढ़े लिखे हैं, कबड्डी खेलने आते थे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, फुटबॉल खेलने आते थे इंटर कॉलेज में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में। तो छोटे थे, देखते थे हम मज़ार था यहाँ, मज़ार का हम लोग मतलब सलाम करके आगे बढ़ जाते थे। और ये मज़ार ऐसा मज़ार नहीं है कि केवल एक धर्म की लोग, यहाँ मुसलमान से ज्यादा हिंदू समाज के लोग आते हैं, यहाँ अपना मन्नत मानते हैं और बाबा का दुआ ऐसा है कि उनकी मन्नतें पूरी होती है। और जब पूरी होती है तो साज बाज के साथ यहाँ आते हैं, वो लोग चादर चढ़ाते हैं और क्या नाम है, शरबत चढ़ाते हैं। તો આગળ આ તરફ વાત કરીએ હવે આપણે વારાણસીની, તો વારાણસીથી એક મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે, જ્યાં જણાવી દઈએ કે લગ્નનું લાલચ આપી અને એક યુવતી સાથે દુષ્કર્મ ગુજારવામાં આવ્યું છે। આઝમગઢના એક યુવકે યુવતી પર દુષ્કર્મ ગુજાર્યો। જણાવી દઈએ કે પીડિતાએ ન્યાય માટે મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથને વિનંતી કરી છે અને તે
જે છે છેલ્લા 1 વર્ષથી પોલીસ સ્ટેશનના ધક્કા ખાઈ રહી છે, છતાં પીડિતાનો કેસ હજુ સુધી નોંધવામાં આવ્યો નથી। આરોપી 8 વર્ષથી પીડિતા પર દુષ્કર્મ કરતો રહ્યો અને ત્યારે પીડિતા વારાણસીમાં રહેતી અને કામ કરતી હતી। પીડિતાએ કહ્યું કે જો મને ન્યાય નહીં મળે તો હું આપઘાત કરી લઈશ અને લાલપુર પાંડેપુરનો આ આખો સમગ્ર મામલો છે। સમાચારોમાં આગળ હવે આપણે વાત કરીએ ઉત્તર પ્રદેશના ફિરોજાબાદની। તો ફિરોજાબાદમાં માસૂમનું ગળું દબાવીને હત્યા કરવામાં આવી હતી। જણાવી દઈએ કે 10 વર્ષની બાળકી જે રોજની જેમ બકરા ચરાવવા માટે નીકળી હતી, પરંતુ માત્ર 2 કલાકમાં જ તેનો મૃતદેહ ખેતરમાં પડેલો મળી આવ્યો। તેના ગળામાં દોરડું બાંધીને તેની હત્યા કરવામાં આવી હતી। પ્રશ્ન ફક્ત આ ક્રૂર હત્યાનો જ નથી, પ્રશ્ન પોલીસની બેદરકારીનો પણ છે। કારણ કે પરિવાર સવારે 7 વાગ્યે પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો હતો, પરંતુ પોલીસે બાળકીની શોધમાં 2 કલાક સુધી કોઈ કાર્યવાહી નહીં કરી અને પછી માસૂમનો મૃતદેહ મળી આવ્યો, અથવા આપણે એમ કહીએ કે માસૂમનો શ્વાસ છીનવાઈ ગયો। બેદરકારીની સાંકળોમાં જીવન કેદ થઈ ગયું। હવે પરિવાર અને આખું ગામ ન્યાયની આશામાં રાહ જોઈ રહ્યું છે। રિપોર્ટ જુઓ અને સમજો કે આખો મામલો શું છે। पुलिस की चुप्पी, परिजनों की गुहार, पुलिस की लापरवाही पर सवाल। लापरवाही से उजड़ गया मासूम का बचपन और न्याय की गुहार लगाते रहे परिजन। मासूमियत की सांसें छीन ली गईं, लापरवाही की जंजीरों में कैद हो गई जिंदगी। फिरोजाबाद के रजावली थाना क्षेत्र के पहाड़ेगढ़ी गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। रविवार की सुबह हर दिन की तरह ही थी। 10 साल की मासूम बच्ची बकरी चराने के लिए घर से निकली। परिवार को क्या मालूम था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। करीब 2 घंटे बीते, बच्ची घर नहीं लौटी। परिजन चिंतित हो गए, चारों ओर तलाश की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। जब बच्ची नहीं मिली तो परिजन थाने पहुंचे, लेकिन यहाँ जो हुआ उसने परिवार की उम्मीदों को तोड़ दिया। आरोप है कि पुलिस ने पूरे 2 घंटे तक बच्ची की तलाश करने की कोई कोशिश ही नहीं की। ये गढ़ी पांडे गांव है, रजावली थाना अंतर्गत आता है। ये एक बच्ची है जो पर डे बकरी चराने सुबह निकलती थी। आज भी ये सुबह 7 बजे बकरी चराने निकली हुई थी। बाद में इनकी माता इनको खोजते हुए आई हैं तो ये नहीं मिली है बच्ची। तुरंत इन लोगों ने थाने पे सूचना दिया। तत्काल इसमें उचित धाराओं में उपयोग पंजीकृत करते हुए इनकी खोजबीन का प्रयास पुलिस ने शुरू कर दिया। वहीं जहाँ बकरी चराने बच्ची गई थी, वहीं पास में ही एक बाजरे के खेत में बच्ची का शव मिला है। इसमें हम लोग मृत्यु का सही समय और कारण जानने के लिए हम लोग PM पंचायतनामा की कार्रवाई करा रहे हैं। पूरी घटना के अनावरण के लिए हम लोग ने 3 टीमों का गठन किया गया है। क्या नाम है बेटी का तुम्हारी? क्या करने आई थी? गांव से महज थोड़ी ही दूरी पर बाजरे के खेत से चीख पुकार मच गई। खेत में बच्ची का शव पड़ा था, गले में कसकर रस्सी डाली गई थी और उसी से उसकी जान ले ली गई थी। यह खबर जैसे ही फैली, पूरे इलाके में सनसनी मच गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था, वहीं ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। गांव वालों ने बच्ची का शव कब्जे में लेकर रजावली एटा मार्ग जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि पुलिस समय रहते हरकत में आती तो शायद मासूम की जान बच सकती थी। इस दौरान सड़क पर अफरा तफरी का माहौल रहा। दर्जनों ग्रामीण मौके पर जुटे और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन की भारी फोर्स मौके पर पहुंची। SSP सौरभ दीक्षित समेत कई थानों की फोर्स हालात काबू करने में जुटी। ग्रामीणों को समझाने बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन गुस्से में लोग लगातार यही सवाल कर रहे थे, अगर सुबह से ही पुलिस बच्ची को ढूंढने में लग जाती तो क्या ये नौबत आती। जनपद फिरोजाबाद के थाना रजावली क्षेत्र अंतर्गत एक 10 वर्षीय बच्ची जो
बकरी चराने गई थी, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। पीछे तस्वीरें ये थाने में है, विलाप करती है महिलाएं, और साफ तौर पे ये बताया गया कि सुबह 7 बजे 10 वर्षीय बच्ची अपने पिता के साथ बकरी चराने के लिए निकली थी। पिता बच्ची को छोड़ के कुछ कार से गया था, इतने में बच्ची की जो है वहां नहीं मिली, और उसके बाद उसका शव जो है वो खेतों में मिला। देखिए आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि गुस्साए ग्रामीणों ने कुछ देर पहले यहाँ जाम भी लगा दिया था, और अब जो है थाने में विलाप करती है महिलाएं। साफ तौर पे आप देख रहे हैं तमाम पुलिस बल मौके पर है। फिरोजाबाद जिले के पुलिस कप्तान सहित तमाम थानों का पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पे पहुंच गया था और लोगों को समझाने का प्रयास किया। तस्वीरें देखिए बाहर दिखा दीजिए कि कई थानों के पुलिस फोर्स जो है अभी भी बना हुआ है, और कई थानों के इंस्पेक्टर फोर्स लगातार यहाँ बना हुआ है। निश्चित रूप से दिल दहला देने वाली घटना है, और बच्ची की जिस तरह हत्या की गई है उससे अनहोनी की भी आशंका होती है। क्या क्या नाम है आपका, बताएं क्या नाम? मेरा नाम जितेंद्र पान सिंह है। कहाँ रहते हैं? मेरा गांव हथीगढ़ी है। हथीगढ़ी कहाँ की घटना है? ये गढ़ी पाड़े की जो रास्ता है जवाहरपुर और पानेगढ़ी के बीच की क्या घटना हुई है? वो लली का गला घोंट के रस्सी से उसकी हत्या कर दी है। किसने कर दी हत्या? अब ये कोई पता नहीं है। क्या मालूम पड़ रहा है? क्या बताओ, क्या लग रहा है? गले में रस्सी बंधी हुई है, वो सब उसका हत्या की गई है। क्यों की गई है, कुछ जानकारी प्रकाश में आ रही है? कोई जानकारी नहीं। तो ग्रामीणों ने क्या किया उसके बाद? क्या ये रोड जाम किया है, रोड जाम करके उसके बाद फिर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बच्चे की हत्या की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हत्या किसने और क्यों की, ये बड़ा सवाल है। गांव के लोगों का कहना है कि मासूम बच्ची किसी से दुश्मनी नहीं रख सकती, फिर ऐसी बेरहमी किसने की। इस पूरे मामले ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है। बच्ची की हत्या ने ग्रामीणों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है। माता पिता अपने बच्चों को अकेले बाहर भेजने से डरने लगे हैं। बच्ची की मौत के बाद पुलिस की कार्यशैली पर उंगलियां उठ रही हैं। क्या पुलिस की लापरवाही के चलते एक मासूम की जान चली गई? क्या 2 घंटे की देरी ने बच्ची और परिवार की किस्मत बदल दी? इतना ही नहीं, पूरे गांव में मातम फैला है और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही बात है, कसूरवारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उसके बाद में जाम खुल गया है। बच्ची क्या करती थी? मतलब सुबह पढ़ती थी, बीपीजीटी इंटर कॉलेज गढ़ी थी। कितनी उम्र की बच्ची है? लली थी करीब 10 साल की। किस क्लास में पढ़ती है? वो करीब पढ़ती थी 7th में। क्या करने आई थी? वो अपने पिताजी के साथ आई थी, तो पिताजी के चाय पीने के लिए गए थे, उनका डेली का काम है। तो वो कह रहे बेटी यहाँ बैठी रही है, तो पिताजी मतलब अपने घर चले गए चाय पीने, वो बेटी वहाँ बैठी है। तब तक ये नहीं पता चला है कौन कौन आया है, क्या हुआ है, और उस बेटी को उठा के ले गया है। पुलिस ने कोई आश्वासन दिया? इस चीज की मैं नहीं कह सकता हूँ। महिलाएं क्या कर रही हैं? ये रो रही है, बिल्लाप कर रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं खुद। तो देखिए, तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये थाना रजावली है, ये फिरोजाबाद का, जहाँ पे विलाप करती है महिलाएं। 10 वर्षीय काजल, जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई, अपने पिता के साथ आई थी बकरी चराने के लिए। पिता महज चाय पीने गया, इतनी देर में बच्ची को ऐसा बताया जा रहा है अगवा करके हत्या कर दी गई। निश्चित रूप से ये तस्वीरें मन को झकझोर देने वाली हैं। छोटी सी बच्ची के साथ निर्मम हत्या इस तरीके से की गई, और यहाँ पे देखिए पुलिस भी पोजीशन में, कई थानों का फोर्स है। भाई साहब, आप गाँव से ही हैं, क्या हुआ है? हमें जानकारी नहीं, बचका चौरा से। अच्छा, क्या मामला है? कुछ जानकारी? तो देखिए तस्वीरें एक बार दिखा दीजिए। निश्चित रूप से ये विलाप करती जो महिलाएं हैं, और यहाँ पे हालत। सीओ साहब, क्या पूरा घटनाक्रम है जरा बता रहे थोड़ा अभी किस तरह की घटना हुई है? बस तो बच्ची का शव मिला है अभी, घटना बच्ची का शव मिला है। सीओ ये मौके पर है, और देखिए लगातार फोर्स जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। एसएसपी की गाड़ी देखिए मौके पर है। फिरोजाबाद एसएसपी अभी मौके पर बने हुए हैं, और पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल पुलिस लगातार कर रही है निश्चित रूप से। लेकिन ये दिल दहला देने वाली घटना है। छोटी सी मासूम सी बच्ची जो अपने पिता के साथ बकरी चराने आई थी, उसे क्या मालूम था कि कुछ पल में ही उसकी जिंदगी चली जाएगी। फिरोजाबाद की इस दर्दनाक वारदात ने कानून व्यवस्था पर फिर से बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक मासूम बच्ची जो बकरी चराने घर से निकली थी, बेरहमी से मौत के घाट उतार दी गई। परिजनों का आरोप है कि अगर पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई की होती तो शायद बच्ची
आज जिंदा होती। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर गहरे सवाल छोड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। સમાચારોમાં હવે આગળ આપણે વાત કરીએ ઉત્તર પ્રદેશના શાહજહાંપુરની, તો જરા વિચારો કે જ્યારે એક પિતા પોતાના બાળકનો શ્વાસ રોકી અને તેની પત્નીને મૃત્યુની યાત્રા પર મોકલી દેશે ત્યારે શું થશે? આવું જ કંઈક જોવા મળ્યું છે। શાહજહાંપુરમાં દેવાનો બોજ એટલો ભારે થઈ ગયો કે એક પરિવારે મૃત્યુને પોતાનો અંતિમ ઉપાય બનાવી લીધો। 4 વર્ષના માસૂમને ઝેર આપવામાં આવ્યું અને પછી પતિએ જ પત્નીને ફાંસો લગાવી અને પોતાનું પણ જીવન સમાપ્ત કરી દીધું। અથવા આપણે કહી શકીએ કે દેવાનો બોજ 3 જીવ ગળી ગયો। રિપોર્ટ જુઓ અને સમજો કે મામલો શું છે। कर्ज और भ्रष्टाचार, 3 मासूम जिंदगियां खत्म। घटना से इलाके में सनसनी, हर कोई स्तब्ध। 4 साल के बेटे को जहर देकर मौत के घाट उतारा, खुद भी लगाई फांसी, पत्नी को भी मारा। रिश्वतखोरी का सारा खेल, न जाने किस किस का मेल। शाहजहांपुर के थाना रोजा क्षेत्र की दुर्गा एनक्लेव कॉलोनी सोमवार की सुबह दर्दनाक मंजर का गवाह बनी। यहाँ सचिन नाम का युवक अपनी पत्नी शिवांगी और 4 साल के बेटे फतेह के साथ रहता था, लेकिन कर्ज की मार और भ्रष्टाचार के दबाव ने इस खुशहाल परिवार को मौत की राह पर धकेल दिया। पुलिस को जांच में 35 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है। नोट में साफ लिखा है कि सचिन पर कारोबार के लिए लिया गया 50 लाख का कर्ज उसकी बर्बादी की वजह बना। सचिन ने जिला उद्योग केंद्र से लोन लिया था, जिस पर सरकार की ओर से सब्सिडी मिलनी थी, लेकिन आरोप है कि संबंधित अधिकारियों ने उससे 50% तक की रिश्वत की मांग कर दी। परेशान हाल सचिन और उसकी पत्नी शिवांगी ने सबसे पहले अपने मासूम बेटे फतेह को जहर देकर मार डाला। मासूम की लाश बिस्तर पर पड़ी मिली। इसके बाद दोनों पति पत्नी फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। सचिन उसकी तैयारी में थे, क्योंकि कल रात को सामान सब बुक हुआ था, आज सुबह सब आना था, आ भी गया था। लगभग 10 बजे मेरे लड़के, कभी 9:30 बजे मेरे लड़के फ़ोन आया, जाओ देखो जाकर उनको मैसेज गया होगा। तो वो मैसेज हमने पढ़ा नहीं, उसने मैसेज पढ़ा, तो उसने हमको फ़ोन करा। तो हमने कहा हम आए तो यहाँ शिवांगी मांगी, वो रात में कर चुके थे। साल का बच्चे है फतेह ग्रोवर, तो हस्बैंड एंड वाइफ ने फांसी लगा के और बच्चे ने अपेरेंटली पॉइजन से सुसाइड किया है। अभी तक की जो जानकारी सामने आई है। तो आता અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો। વધુ સમાચારો માટે જોતા રહેજો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત।